हाँ जी, पंजाब PCS ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਭਰਤ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਭਰਤ ਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਔਨ ਮੰਡੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਨ ਆਫ ਆਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੈਸਟਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਗੇਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਤ ਸਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤ ਸਰ ਨੂੰ ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਭਰਤ ਸਰ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਔਨ ਮੰਡੇ। He should be fine. He was feeling unwell yesterday, but he should be fine. So Monday onwards, your geography and environment will resume. Although ਇਹਦੀ 2-3 ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ I will come and I will teach you PCS IR and पॉलिटिकल थ्योरी फॉर PCS। एक्चुअली जो हमने ऑलरेडी आपको IR कराया था वो UPSC के लिए है, PCS में इतना ज़्यादा नहीं आता। PCS में कुछ गिने चुने से टॉपिक्स हैं, वो सिलेबस पे भी मैंशनड है, एंड PCS adheres to its syllabus by and large, और उसी में से सवाल आ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड UPSC का ऐसे ओपन एंडेड सा सिलेबस है। व्हेन इट कम्स टू IR, क्वेश्चन आ जाता है नेबरहुड ते भी, तो क्वेश्चन आ जाता है इकोसॉक ते भी। तो दैट्स वाई वी टेंड टू कवर IR in greater detail for UPSC, so you don't have to necessarily check those out। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜੂਲੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਗੇਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਭਰਤ ਸਰਸ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂਜੂਲੀ 2 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਯੋਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਵਜੇ, 9 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ GS ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ, ਕਲੀਅਰ, ਸੌਰਟਡ। ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਨਾਊਂਸ, ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11th of October, we are taking a complete online mock. This is going to be the biggest mock for a very simple reason कि तुसी इन्नू वड्डा बनाना है। More students participating in it, more it will be the replica of the actual examination। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਐਪ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਭਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PCS ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੈਨਰ। ਸੋ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਤਾ, ਹਫਤਾ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਗੁੱਡ 10-15 ਡੇਜ਼ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਵੈਲ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਐਂਡ ਦੈਨ relative to others how well you are prepared for this exam। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। many of you may be wondering ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ CBL ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ UPSC ਦੇ ਲੈवल ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, PCS 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ नहीं, ਇੱਦਾਂ नहीं ਉੱਦਾਂ नहीं। भाई 2 चीज़ें हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ठीक। जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी जो बोल रहा है, उनको समझदार होंगे, उनको ज़्यादा पता होएगा। हम आपको 2 चीज़ें बता रहे हैं। पहली चीज़, the kind of students who take this exam and clear this exam। 2018 में बच्चे पढ़ाए हैं इतने सारे, APS सुमल साहब पढ़ाए हैं, मोहित सिंगला जी पढ़ाए, कितने सारे बच्चे पढ़ाए हैं जिनका पेपर हुआ है। the kind of students who take this exam are the ones ਜਿਹੜੇ 2-2 3-3 ਵਾਰ ਆਲਰੇਡੀ UPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਤੇ ਮੇਨਸ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਤਾਂ UPSC ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਾਓ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ABCD ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ABCD। यार इस चीज़ को ना
पहली बार तो इस चीज़ की ना तैयारी की रिटर्न्स नहीं निकलती। मैं कितने ही लोगों के कितनी स्टेटमेंट्स याद कर लूँ, मैं कितने ही लोगों के कितने अवार्ड्स याद कर लूँ, कॉमन मैं कर लेता हूँ, मेन मैं कर लेता हूँ, पर मैंने अगर 100 लोगों की स्टेटमेंट्स को याद कर भी ली, पेपर में उन्होंने फिर एक पूछ ली, वो पता नहीं मेरे को याद होनी है कि नहीं होनी। ऑन द अदर हैंड, अगर मुझे प्रेसिडेंट की पावर्स पता है, अगर मेरे को रावी ब्यास की ट्रिब्यूटरीज पता है, अगर मेरे को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ये पता है, यहाँ पे बरकत तो पड़ेगी। जो मैंने पढ़ा हुआ मैं पेपर में तो करके आ सकूंगा। इस तैयारी का सबसे बड़ा नुकसान, जो फैक्चुअल तैयारी के पीछे भागते रहते हैं ना बच्चे 2-2 3-3 महीने, कि यार कि ये तो फिर भी पेपर ਤਾਂ ਇਹਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬਈ 10-12 ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਆ, ਐਸੇ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਸਪੈਂਡ 2-3 ਮੰਥਸ ਡੂਇੰਗ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਟਰਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਲੌਜਿਕ, ਆਪ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ? ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਾ 10, ਆਹ ਲਿਖੋ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, शिव कुमार बटालवी ने ये लिखा सी, ये लिखा सी, ये की कोई गल्लां च गल्लां असीं 2 दिनों च करा देनी थानू। बट द पॉइंट इज आज पेपर से कितने महीने पहले या जितनी भी देर पहले इसको करा दूंगा मैं, पेपर तक आपको फिर नहीं याद आना। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो जीएस बेस्ड पेपर है, ये याद रखना, ये यूपीएससी के लिए भी ट्रू है। ये मेरे को एक बात बोली थी, हम जब एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे ना, वहाँ पे एक सर होते थे विकास शर्मा सर, ठीक। अदरवाइज उन्होंने मेरे विचार ज़्यादा, मतलब उन्होंने एक अपना स्टाइल सी, मेरा अपना स्टाइल सी, पर जे थोड़े किसी ने नहीं भी विचार मिलते तो चज की गल तो दस ही सकता है। विकास शर्मा सर ने ना मैंने गल कही सी जी मैं अज भी मानता है। वो कहते भी सर जे कभी कोई जीएस बेस्ड पेपर है ना, जिदा यूपीएससी हो गया, सीडीएस हो गया, पीसीएस हो गया, जीएस बेस्ड है, ये तुहाडा पेपर निकलता है इंडियन जोग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ठीक। इत्थे इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री लिखा सी, कहते हिस्ट्री, इंडियन जोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। कहते जे तुसी ये क्वेश्चन सारे ठीक करे आए तो मैक्सीमम क्वेश्चन तुसी ठीक करे आए, थोड़ा पेपर है ना, थोड़े 90% चांसेस बढ़ जाते हैं, तुसी पेपर कढ़ लोगे प्रीलिम्स का। तो इन्होंने सर ने भी अपने आप 6 प्रीलिम्स यूपीएससी के कढ़े ने, तो मेथों गलतियां हुई, उन्होंने मैनू समझाया सी गल, तो बिल्कुल सही गल है उन्होंने। बिकॉज ये नहीं भी ये तो बाहर पेपर नहीं आना। हुण इंडियन जोग्राफी दे नाल नाल तुहानूं वर्ल्ड जोग्राफी तो भी क्वेश्चन आ सकता, बैकोलिथ की है, लैकोलिथ की है ना, मान लो फ्रंटोजेनेसिस से कोई क्वेश्चन आ गया। बट द लाइकलीहुड ऑफ यू गेटिंग दिस क्वेश्चन राइट इज मोर दैन लाइकलीहुड ऑफ यू गेटिंग दैट क्वेश्चन राइट। सिमिलरली पॉलिटी, हुण पॉलिटी तो आप करते ही हैं सारे, ठीक। हुण मैं तुहानूं एक लैवल की पॉलिटी कराती, उस तो थल्ले जिहड़ी बेसिक जो फैक्ट ने 59th अमेंडमेंट च की होया, 69 च की होया, 42 च की होया, वो तो मैं करा दूंगा थानू 10 मिनट च, वो किहड़ी गल्लां च गल्लां, ठीक है। वो तो ईजी पार्ट है ना, हुण जो थानू आइडिया ऑफ अमेंडमेंट पता है, सारा कुछ पता है। सिमिलरली इंडियन इकोनॉमी, बेसिक इंडियन इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, बेसिक इंडियन इकोनॉमी ईजिली पेपर कढोगे तुसी। हुण एशियंट तो भी क्वेश्चन आऊगा, मिडीवल तो भी आऊगा, आर्ट एंड कल्चर तो भी आऊगा, चाहे यूपीएससी तो लगे कोई भी स्टेट का पेपर क्वेश्चन ला लो। बट आपने 20 गौतम बुद्धा की मुद्राएं कर ली, गौतम बुद्धा ऐसे बैठे हैं तो इसका ये मतलब है, ऐसे बैठे हैं तो ये मतलब है, ऐसे बैठे हैं तो ये मतलब है। उन्होंने फिर कोई भूमि स्पर्श मुद्रा, कोई होर मुद्रा फिर यहो जी पूछ लेनी है, वो तुहानूं फिर नहीं आउंदी होनी। इस तो वधिया मैं ये करा 1757 से लेके और 1947 की हिस्ट्री, कम से कम क्वेश्चन आता है, लॉजिक तो लगता है, थोड़ा दिमाग तो लगता तो है कि हाँ मैं इसको कर लूँगा। इसको ऑल टुगेदर छोड़ने को नहीं मैं बोल रहा, छोड़ने को नहीं बोल रहा, बट ये आपने ठीक करना है। अब पीसीएस की बात है, इसमें तो वैसे ही सीसेट, इसको करो टिका के। इसका एक पोर्शन है जो यूजुअली बच्चे छोड़ जाते हैं, वो इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल दैट, वो अनु मैम ने 2 क्लास से ली हैं। अगेन अब यार कोविड हुआ है, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, पर अभी आ जाएंगे अनु मैम वापस, तो उन्होंने टचवुड उनको नहीं हुआ पर यहाँ पे हम उनको लेके नहीं आ रहे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे पॉजिटिव हो गए थे। तो उन्होंने 2-3 क्लासेस ली हैं, बाकी भी क्लासेस लेंगे। सी सेट में टिका के आप मार्क्स लो। अपने सर हैं वो नकुल सर, जिन्होंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन कराया था, बेचारा था, अज भी मैनू कॉल आई, कहते सर तुसी मैनू ना जदों कहोगे मैं उस वीक आ जाऊँगा तो मैं क्लास ले लाँगा, ही इज़ सो डेडिकेटेड फॉर यू। द ओनली थिंग इज़ कि मैं क्या सर थोड़े घर छोटा जिहा जवाक है, न्याणा उन्होंने को, मैं क्या भी तुसी हाले रहन दो, पहले इतने प्रॉपर सारे ठीक हो जान, तुसी फिर ही आयो। सो द पॉइंट इज़ कि हम आपको सी सेट अच्छे से करा देंगे, आपको सारा जीएस करा दिया। फिर जब पीपीएससी एडमिट कार्ड निकाल देगी,
जब पीपीएससी एडमिट कार्ड निकाल देगी फिर भाई हम होपफुली हम होएंगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं होता, सारे ठीक रहेंगे, तो हम भी आपको ये सारे फैक्ट्स कराएंगे। लेकिन वो बच्चे शॉर्ट टर्म मेमोरी के फैक्ट्स हैं। मैं आपको आज जुलाई में करा देता और आपसे मैं आज पूछ लेता, आप अभी तक भूल चुके होते। आप जीएस कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भूल जाते हो, तो डू यू रियली थिंक कि अगर मैंने आपको बोल दिया कौन सी किताब किसने लिखी थी, कौन सी किताब किसने लिखी थी, कौन सा अवार्ड पंजाब में किसको मिला है, किहड़े पिंड च की होया है, ये मैं तुहानूं जुलाई च कराया हुंदा ते तुहानूं दिसंबर च याद रहिंदा। अभिमन्यु इंस्टीट्यूट एक चंडीगढ़ में, वहाँ पे एक सर है आरपी सर, ठीक। अदरवाइज अगेन मतलब मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो भी एक चीज़ उन्होंने एक बार बोली थी किसी बच्चे को और मेरे को बड़ी चीज़ सही लगी थी। वो कहते हैं कि यार जब यूपीएससी की तैयारी करो अच्छे से, और जब पीसीएस का पेपर है, मैंने ये नहीं पता वो आज की डेट से कहते कि नहीं कहते, सन 2014 की गल कर रहा है मैं थोड़े नाल। वो एक बच्चे ने कहते भी यार जो पीसीएस का पेपर है ना, पेपर तो 20-25 दिन पहला बस इन्ने दिन तुसी पंजाब करना है, इन्ने दिन तुसी पंजाब स्पैसिफिक जीके करनी है, इन्ने दिन तुसी पंजाब स्पैसिफिक चीज़ां करनियां ने। जे तुसी सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तां कहते फिर भी यही करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मैमरीज तुहानूं चाहिए ये चीज़ां। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। उन्हां दा पॉइंट जिहड़ा कि बहुत उन्होंने जायज़ गल कीती सी मेरे हिसाब नाल, मैं तुहानूं एक एग्जांपल दिंदा। मैं तुसी आप भी पढ़ रहे होने, मैं पॉलिटी का एग्जांपल दिंदा। जे मैं तुहानूं अज कोई कॉन्सैप्चुअल क्वेश्चन पुछदा ना पॉलिटी का, तुसी मैनूं शायद दस दोगे, होपफुली माड़ा मोटा तुहानूं ठीक पढ़ाया है। बट जे मैं तुहानूं पुछा ना अज भी कोई पार्टी है उन्होंने, चलो ये तो हाले टॉपिक कराया ही नहीं, मैं इवेंचुअली करावांगा। कोई पार्टी है उन्होंने नैशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का की क्राइटेरिया है। जोड़े पुराने 2-2 4-4 अटैम्प्ट भी दे चुके ना यूपीएससी के, उन्होंने भी पता की कहना है, ओ यार कुछ इदा का होंगे भी, पता नहीं 4 स्टेटां 2% मिल जाए, पता नहीं 3 स्टेटां 3% वोट मिल जाए, या 6 MP आ जान, इदा का कोई क्राइटेरिया है। मतलब 3 अटैम्प्ट बंदे ने दे दिए और पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो वो ठीक भी कराता है, क्योंकि उसको पता है ये शॉर्ट टर्म में ही रहती हैं चीज़ें, ये पेपर से पहले मैं रिवाइज करूंगा और पेपर के बाद मैं दोबारा भूल जाऊंगा। ओके, सो कहने का मेरा भाव क्या है, ये एग्जाम जितना पढ़ने का है ना उतना स्ट्रेटेजिकली पढ़ने का भी है। जीएस जिस बंदे का हुआ है वो ऐसे छाती चौड़ी करके दलेरी से पेपर देने जाएगा, जिसका सी सेट हुआ है। ये फैक्ट्स जिसके हुए हैं बाद में लास्ट में, उसको पता है कि अब मेरा पेपर कंट्रोल में है। जिन्हें सिर्फ फैक्ट्स पे ही जोर लाया 3 महीने, वो फिर हो भी सकता है पेपर, नहीं भी हो सकता, तो जो हो भी गया मेंस च थोड़े ट्रबल हो सकती है। अगेन दिस इज वट वी फील, देर इज नो फाइनल होली कुरान नहीं हैगी कोई भी यार इदा पेपर निकलता है पीसीएस का तो इदा नहीं निकलता, सारे दे डिफरेंट मैकेनिज्म्स ने। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ आ रहा हो कि हम कर क्या रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों में यार अब कोविड ही हो गया, हम क्या करें, ठीक है। उसमें क्या होता है 6 बजे वाला टीचर है वो पढ़ाने आया, एक दिन आया, अगले दिन पता लगा ढीला हो गया, फिर 9 बजे कोई 12 बजे वाले टीचर नाल इदा हो गया, मेरे नाल आप इदा हो गया, तुहानूं पता ही है। सो बट वी आर बाउंसिंग बैक, वी आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। सो थोड़ी जोग्राफी एनवायरमेंट हुण हो जाऊगा, पॉलिटी थोड़ी होर 2-4 दिन मुक जानी है, 4-6 दिन, दैन वी विल डू अच्छे से IR एंड पोलिटिकल थ्योरी। उस तो बाद थोड़ा जीएस च रह जाऊगा जनरल साइंस, जीएस बेसिक जीएस। हाले मैं पंजाब की गल नहीं की, पंजाब के करंट अफेयर्स, पंजाब की जीके, पंजाब का कुछ नहीं हाले गल की। बेसिक जीएस थोड़ा जनरल साइंस रह जाऊगा। संयोगिता मैडम इज रिकवरिंग टचवुड वेरी फास्ट, सो होपफुली एज सून एज I shift myself to 9 o'clock वाली playlist after Bharat sir, where we will do political theory and IR. संयोगिता मैम will shift to 6 PM वाली playlist where she will cover science। तो होर थानू 10-12 दिन तकरीबन सारा GS करा देंगे। सी सैट जी 2-4 क्लासा पेंडिंग ने, और अगेन टीचर्स आर विलिंग, मनीष सर इज विलिंग, अनु मैडम इज विलिंग, नकुल सर इज विलिंग टू कम ऑल द वे फ्रॉम वो पंजाब च गंगानगर तो, बट स्टिल आई एम नॉट अलाउइंग दैम। मैनू तुसी मेरे नाल प्लीज़ हफ्ता 10 दिन सहयोग करो, ठीक है। सारे पेपर की तैयारी करांगे, बट 11 अक्तूबर लिए तुसी तैयार हो जाओ। 11 अक्तूबर को ऐप के उत्ते ऑनलाइन टेस्ट देवांगे, सो दैट वी ऑल हैव रियल टाइम दिस थिंग, रियल टाइम अपनी वो आ जाए, की कहते हैं यार, रैंक लिस्ट आ जाए, ठीक है, ठीक है। चलो, दोज ऑफ यू हु आर ऑल्सो विलिंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, एक चीज़ और मैं थोड़ा गल करना चाहता क्योंकि एक सेकेंड, जे कोई यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो ऑप्शनल की गल असीं करिए, जे तो उन्हां दा ऑप्शनल रेडी है,
उन्होंने पता भी मैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेना है, सोशियोलॉजी लेना है, पंजाबी लिटरेचर लेना है, कन्नड़ लिटरेचर लेना है, कोई भी ऑप्शन लेना है, वेरी नाइस, दैन यू मस्ट ऑलरेडी बी स्टडिंग फॉर इट, जिद्दां भी तुसीं तैयारी कर रहे होने। जे किसी का अनडिसाइडेड है ਜਾਂ उन्हें पोलिटिकल साइंस ऑप्शनल सोचा होया भी मैं लेना है, हाले मेरा मूड बन रहा मोस्ट लाइकली इदां असीं कर लांगे 11 अक्तूबर ਲਈ ਅਸੀਂ पंजाब ਦਾ फ्री PCS कोर्स मुक जूगा। इस तो बाद आई विल नीड अबाउट गुड 1 वीक्स रेस्ट। तकरीबन 20 अक्टूबर तो आई विल स्टार्ट पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल एंड दिस कोर्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी 100% फ्री। पूरा तुहानूं ऑप्शनल कराने दी मैं हंबल एक मेरी वो रहेगी, कोशिश रहेगी। दिस कोर्स हाउएवर इहदी लैंग्वेज जिहड़ी है वो 2 क्लासां आउणगीआं तुहाडे कोल, एक रहेगी इंग्लिश एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक इंग्लिश आई एम नॉट गोइंग टू टॉक the way I talk in these classes where I mix English and Hindi and Punjabi. In these classes the medium of instruction is going to be English। तो जिहड़ी दूजी क्लासां ने यह उत्कृष्ट हिंदी में होंगी, ठीक है, ये हिंदी में होंगी और एक इंग्लिश में होंगी। तो शायद कुछ ऐसा 20 अक्टूबर से हम शुरू कर देंगे, तो जिसको पॉलिटिकल साइंस लेना होगा मैं करा दूंगा, ठीक, क्लियर। अगर यूपीएससी की भी तैयारी करनी है, जीएस या आप हमारे साथ कर रहे हो या आप कर सकते हो या आप कहीं और से कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है। चलो चलें आगे। अब आज का जो लेक्चर है आपका वो 6 बजे वाला लेक्चर फिर हमने 9 बजे शिफ्ट कर दिया क्योंकि भरत सर इजंट वेल। तो परसों जो मैंने छोड़ा था आपको वो छोड़ा था पंचायतों पे। पंचायतें क्लियर हो गई। द बेसिक आइडिया ऑफ पंचायत वॉज ग्रास रूट डेमोक्रेसी। वी नीचे से बॉटम अप अप्रोच, पावर शुड फ्लो फ्रॉम द ग्रासेस टू द एलीट। बेसिक आइडिया भी यही सी भी यार हुण तुसीं आ देखो ये इंडिया है, ठीक, हुण चंडीगढ़ च बैठे ही सीएम नूं नहीं पता हुंदा जां पटियाला बैठे सीएम नूं नहीं पता हुंदा भी तलवंडी साबू वाले बंदे दी की तकलीफ है, ते जिहड़ा दिल्ली च बैठा है, आइवरी टावर ऑफ दिल्ली च बैठा है, जे मोंटेक सिंह आलूवालिया या मनमोहन सिंह या हुण मोदी जी कोई भी बैठा है, उन्होंने इन्ना एरियाज दी डोमैस्टिक प्रॉब्लम्स दी आइडिया नहीं होगा। तो गांधी यूज टू से कि यार इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, इंडिया पिंडां च वसदा है, उदों तो होर भी ज़्यादा, आज तो 70 साल पहला, ठीक है। तो उन्होंने लगता से भी यार पावर ना थल्लों उत्ते होनी चाहिए है, सैल्फ सफिशेंट विलेजेस होने चाहिए ने। सैल्फ सफिशेंट का मतलब की है लैजिस्लेटिव एंड एग्जैक्टिव लैवल ते, नॉट ओनली फाइनैंशियल लैवल ते, लोकल लोग अपने पिंड नूं किवें चलाना है उहदे हिसाब नाल लॉ बनाण, ठीक है, छोटे छोटे लॉ, ये नहीं कि पूरा जी हमारी अपनी करेंसी और हमारा अपना डिफेंस है। रोज़मर्रा की लाइफ कैसे चलानी है उसके लेजिस्लेटिव प्लेन पे लॉ भी वही गांव बनाए या कलेक्शन ऑफ विलेजेस बनाए, उनको एग्जीक्यूट करे और फाइनेंशियल पावर तो उनके पास हुई, सो दैट डेवलपमेंट इस तरह से हो। मज़े की बात पता क्या है, हम इसको बड़ा इंडियन आइडिया समझते हैं। अगर आप यूरोप चले जाओ, से फ्रांस, से यूके, सारा यूके इसे कॉन्सैप्ट तो दे नाल चलदा अज भी। लोकल काउंसिल्स बनिया हुई ने, उस तो बाद काउंटीज़ बनिया हुई ने, एंड दैन यू हैव यूके। सिमिलरली फ्रांस भी इदा ही है। तो बॉटम अप अप्रोच की गल हो रही सी ग्रास रूट डेमोक्रेसी की। इंडिया च आई, असी लास्ट क्लास की सी डिटेल च भी, इंडिया च आई डेमोक्रेसी ये वाली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ मल्टीपल कमिटीज़, तो बहुत सारे फेल्ड की कहते हैं एक्सपैरीमेंट्स भी होए। इवेंचुअली ये डिसाइड किया गया भी यार जदों तक असी पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं देंगे उदों तक कुछ नहीं होंदा। एक बार मैं थोड़ा 1 सेकंड लिए रीकैप करा दिंदा है कि आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने ना ये कहा 1950 च भी तुसी की करना है, तुसी पंचायतां ऑर्गेनाइज करनी है, रेगूलेट करनी है। कोई आमद नहीं आई भी एक पंचायत होया करेंगी इंडिया च। पंचायतें तो चली आ रही हैं हज़ारों सालों से। साउथ इंडिया की बात करें तो वेल डॉक्यूमेंटेड चोल एम्पायर जड़ी सीगी उत्थे वेल डॉक्यूमेंटेड पंचायत होंदियां सीगियां, अपने इत्थे भी सीगियां। पंचायतें तो थी, लेकिन अगर हम अपने पार्ट की बात करें तो बड़ा फ्यूडल नेचर ऑफ पंचायत थी। जिमीदार हो गए कोई वड्डे, ठीक, उस वाले जिमीदार ने भी साडा बापू जिमीदार किवें लैके दे दो कार, वो कार लैन वाले बड़े बड़े जिमीदार हो गए। पिंडां दे उही मुखिया ने, एक अद्धा कोई पिंड च पढ़ा लिखा बंदा है, वो 5-10 बंदियां दी होगी पंचायत इनफॉर्मली।
एवरीथिंग इज़ इनफॉर्मल। पिंड 'ਚ कोई किसी ने किसी ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ जी, पंचायत चल गया मसला, किसी ने किसी ਨਾਲ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, कोई होर कोई भी इशू हो गया, पंचायत बह गई, किसी ਨੂੰ ऐसे ही आर्बिट्रेरी वर्डिक्ट्स भी दे दिए। इस तरह से ऑल्दो द वेरी रफ स्ट्रक्चर वॉज देयर, बट स्ट्रीमलाइन नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वेल रेगुलेटेड नहीं है। तो इस चीज़ के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि यार हम डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में लिख के दे रहे हैं कि तुम्हें काम करना पंचायतें बनाना, और वो पंचायतें फिर बहुत सिस्टमैटिकली इंडिया में डेवलपमेंट किया करेंगी। इस चीज़ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਰ 1992 'ਚ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਏ 74th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ग्राम सभा। व्हाट वाज ग्राम सभा? कलेक्शन ऑफ ऑल दी वोटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहां सारे वोटर इकट्ठे हो जाएं वो ग्राम सभा है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने लास्ट क्लास में किया था। उसके बाद में सिलेक्शन कैसे होती है, हमने 3 लेवल्स पे पंचायत की थी। सब तो पहला लेवल डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिन्हों से कहते हैं जिला, ठीक, जिला पंचायत, जिला परिषद, ओके। सब तो थल्ले होंदी है उस विलेज पंचायत, जिन्हों से कहते हैं ग्राम पंचायत। दूजे लेवल ते होंदी है ब्लॉक पंचायत, जिन्हों से कहते हैं पंचायत समिति एंड जिला परिषद। 3 लेवल से साडे कोल पंचायतां ने। मैंबर्स तीनों लेवल दे डायरैक्टली इलैक्ट होंदे ने। चेयरमैन जिला परिषद ते पंचायत समिति दे इंडायरैक्टली इलैक्ट होंदे ने, ते ग्राम पंचायत दे डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट लैजिसलेचर। ते मैं तुहानू गल दसी सी भी, पंचायतां दे विच कॉन्स्टिट्यूशन च तां बनाता नरसिम्हा राव जी ले आए, पर नरसिम्हा राव जी नूं ये पता सी भी यार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किन्ना क है, किन्ने मैं स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ले आवां जिससे स्टेट्स को या बाकी पार्टीज को प्रॉब्लम ना हो। अगर मैंने पूरी ही पावरफुल पंचायत ले आई तो ये बिल ही नहीं पास होने देंगे, तो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਲੈ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਡਿਵੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ, ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੈਲੇਟਨ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਵਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ पा के ਲੈ ਲੈਣਗੇ पावर तो छीनने से ही मिलती है, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन मैं एक स्कोप क्रिएट कर जाता हूँ। तो ऐसे करके हमने कल पंचायत की थी बहुत डिटेल में। अब हम करते हैं पावर्स और फंक्शंस ऑफ पंचायत। क्या पावरां ने पंचायत कोल, की फंक्शन ने पंचायत कोल। अगेन अगर मैक्सिमम चीज़ों में यू विल सी कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर रहती है कि वो कितनी पावर्स पंचायत को दे सकता है। सो अगर कोई भी एग्जाम में ऐसी स्टेटमेंट आए, ये थंब रूल नहीं है, बट कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आए जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर पर डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग ऑन दैट वो पंचायत को कितनी पावर देती है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट लेजिस्लेचर वो क्या फंक्शंस देती है, तो ये स्टेटमेंट यूजुअली ट्रू होगी। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है सच पावर्स या अथॉरिटी देने की पंचायतों को जिससे पंचायतें सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बन जाएं, ठीक। उनको इस हिसाब से डेवोल्यूशन करने की, डेवोल्यूशन आप समझ रहे हो ना, इस हिसाब से पावर्स देने की जहां से पंचायतें जो हैं वो अपने प्लान्स बना सकें और उनको एग्जीक्यूट कर सकें। यही 2 लेवल्स होते हैं, आप ध्यान रखना। अगर मैंने स्टेट लेजिस्लेचर ने पंचायत को पावर देनी है, कैसी पावर दे सकते हो आप किसी को, किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, या तो लॉ बनाने की पावर, कोई प्लान बनाने की पावर, या फिर प्लान को एग्जीक्यूट करने की पावर, या फिर दोनों पावर्स। तो वही यहाँ पे है। पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये प्लान्स जिला परिषद के लेवल पे बन जाएं, इसके लिए सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान्स। और दूसरा, अगर सरकार की कोई स्कीम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आप पंचायतों को पावर दे सकते हो। और 29 आइटम्स 11वें शेड्यूल में लिख दी गई कि ये वाली आइटम्स जो हैं इन पे पंचायत अपने कुछ नियम कानून बना सकती है। अब ये जो 29 आइटम्स हैं ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इनकी नेचर बस आपको पता हो
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਵਰਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਰਦਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਰੈਸਟਰੀ, ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਮਾਈਨਰ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਖਾਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਫੋਡਰ, ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਰੂਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਲੋਕਲ ਨॉन ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਥੀਸ ਕਾइंड ऑफ थिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ पावर दीयाँ गई ने भी स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को अलाउ कर सकती है इन चीज़ों के ऊपर लेजिस्लेट करने के लिए। पहली चीज़ समझ आ गई थानू, ये तुसी एक बार निगाह मार लो, थानू PDF मिल जाएगी या थोड़े को होनी भी है। दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायतों के पास पैसा कहाँ से आएगा। फाइनेंसेस और पंचायत को लेके आपको तीन एक चीज़ें समझनी है। एक बार क्या लिखा है इसको छोड़ के बस सुन लो। पहली चीज़, एक तो यही लाओ तुसी भी ये पंचायत है, पहली चीज़ स्टेट लेजिस्लेचर ने पैसे देते, सिंपल, उन्होंने पैसे देते, इन्होंने यूज़ कर ले। दूजी चीज़, स्टेट लेजिस्लेचर ने पंचायत नू पावर देती भी यार लोकल छोटा मोटा टोल ला लिया करो, तुसी थोड़ा बहुत टैक्स ले लिया करो, कोई लोकल किसी भी चीज़ का जी पंचायत के अंडर आती है कोई चीज़, ठीक, तुसी लोकल टैक्स ला लिया करो, लोकल टोल ले लिया करो, लोकल फीस ले लिया करो, किसी चीज़ का रेंट ले लिया करो। दैट वेज एक तो थानू असी पैसे दे रहे हैं, दूजा तुसी आप दे पैसे जनरेट करके फाइनेंसिस मैनेज कर लो, ठीक, क्लीयर। बट थानू पता ही है भी पंचायत किन्ने की टोल ला सकती है, किन्ने की टैक्स ला सकती है, पहली चीज़। तो डेवोल्यूशन जी है, स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायतों को किन्ने पैसे देने हैं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। इस चीज़ कॉन्सैप्ट आता है फाइनेंस कमीशन का। थानू कल तो मैं करावांगा सेंटर स्टेट रिलेशन, देन वी विल डू आर्टिकल 280। 280 में हम एक इंस्टीट्यूशन करेंगे जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन दो मेन काम करता है, बहुत सारे काम करता है। हर 5 साल बाद राष्ट्रपति महोदय जी एक फाइनेंस कमीशन का अपॉइंट करते हैं, ये दो काम करता है। पहला क्या है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन, और दूसरा काम हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। एक ही गल बनी, मान लो सेंटर कोल हमारे नरेंद्र दामोदर मोदी जी के पास 100 रुपये हैं, उसमें से कितना पैसा तो वो अपने पास रखे और कितना नीचे स्टेट्स को दे दे। वर्टिकल डेवोल्यूशन की कोई मेथड होना चाहिए, कोई कायदा कानून होना चाहिए। वो कायदा कानून जो है वो फाइनेंस कमीशन बताता है भी काका इदा कर, इस बार 42% पैसे दे दे थले, मतलब जे तेरे को आने 100 रुपये, 42 रुपीज़ यू गिव इट टू स्टेट्स, मान लो समथिंग लाइक दिस। हर 5 साल बाद नया आइडिया आ जाता है, बढ़ा देते हैं पहले से। चलो जी 42 रुपये मान लो इन्होंने थले देते, बाकी जोड़े उन्होंने को पैसे बच गए, वो मोदी जी अपना घूमना फिरना भी होंगे, हाल तो रुकिया हुआ अजकल, बट जो भी काम करने उन्होंने वो कर सकते हैं सेंटर गवर्नमेंट। हुण ये 42 रुपये तुसीं थले स्टेटां च वंडने, ਇਹਦਾ भी कोई कायदा कानून होना चाहिए। हुण साडे जिहड़े यूपी वाले भैन भरा ने वो सुख नाल बहुत ज़्यादा ने, 21 करोड़ के 22 करोड़ के नेड़े तेड़े हो गए हो। तो मान लो जिहड़े साडे गोवा च भैन भरा ने वो थोड़े जे घट ने, पंजाब वाले जे आपां इंडिया वाले काउंट करिए, ठीक है, किन्ने 3 करोड़ ला लो। नाउ लुक एट दिस, डोंट यू थिंक कि 21 करोड़ को ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे कंपेयर टू 3 करोड़। पहली चीज़। दूजी चीज़, पर यदा तो मतलब ये भी हो गया भी बस फिर जवाक जम्मी चलो तो पैसे ले चलो, स्टेटा तो होर कोई काम ही नहीं होना चाहिए, ला दो सारे छुट्टी दे दो 2-2 दिनों की, चलो भाई हो जो सारे तकड़े। पॉइंट बीइंग कि चलो मान लिया भी एक तो पॉपुलेशन होगी, फिर मान लो आप क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आपको कराऊंगा फाइनेंस कमीशन अच्छे से। तो कि चलो जी 1971 की पॉपुलेशन लगा लो, 2011 की पॉपुलेशन लगा लो, फिर सिमिलरली जैसे क्राइटेरिया सेट करती है बेसिकली। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने क्राइटेरिया सेट किया था, फॉरेस्ट कवर जिस स्टेट में बढ़ रहा है उसको इंसेंटिवाइज करो कि यार और पैसे मिलेंगे तेरे को, तो तुमने पेड़ लगाया है और पैसे मिलेंगे। सिमिलरली
फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल डिस्टेंस, वो भी क्राइटेरिया एक बना लो। फिस्कल डिस्टेंस क्या होता है, अब आपने इकोनॉमी पढ़ ली है सर से भी। फिस्कल डिस्टेंस क्या होता है, आप इन्होंने बोला है कि यार एक बेसिक सी चीज़ समझो वैसे, अदरवाइज थोड़ी स्टेट किमें दे खर्चे हो सकते हैं। एक तो हस्पताल बन गया, ये खरड़ वाला ब्रिज बन गया, ठीक है, या कोई भी इदा दी कैपिटल इन वो हो गई, डेवलपमेंट हो गई, एक कैपिटल थोड़ा एक्सपेंडिचर हो गया। एक थोड़ा होर खर्चा होंदा स्टेट च, की होंदा है, पहला एक बैंड वाला गया, फिर एक फायर ब्रिगेड वाला गया, फिर एक वाटर सप्लाई वाले गए, फिर 4 दोबारा बैंड वाले गए, फिर 2 एंबूलेंस गई, फिर एक गड्डी च कोई अफसर या CM साहब गए या कोई भी मिनिस्टर साहब गए, फिर पिछे फिर 4 गड्डियाँ, फिर 5 पुलिस दी गड्डियाँ, 6 फायर ब्रिगेडां, 10 एंबूलेंस, 12 फिर कोई होर इदां दे बैंड बाजे वाले गए। हुण जिहड़ा ये खर्चा होया है, इतना स्टाफ, इतना खर्चा, ये एक एग्जाम्पल है। कई बार आपने देखा होगा कि IAS ऑफिसर के वाइफ ने सब्जी लेने जाना होता है तो 3-4, या IPS ऑफिसर के भी वाइफ ने सब्जी लेने जाना है तो 4-5 कांस्टेबल तो साथ में जाएंगे यार, कमाल है, ठीक। तो फिर लोग ताही तो टैक्स देंगे भी मैडम सब्जी लेके आ सके, है ना। सो दिस एक्सपेंडिचर व्हेन आई यूज्ड टू टीच हियर इन चंडीगढ़, बच्चा है किसी अफसर का बच्चा या किसी मिनिस्टर का बच्चा, आशकी मारन आया, पढ़ता भी नहीं, थल्ले 4 पुलिस वाले खड़े ने क्योंकि पापा जी ना वो लगे हुए ने, तो वो 4 बंदे, ये सारा जो एक्सपेंडिचर है टैक्स पेयर्स का, ये किसी खाते में नहीं है, ये बैड फिस्कल मैनेजमेंट है स्टेट की। इस तरह के लाखों और एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं किसी को एक्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट्स हाउ इट गोज हियर। ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस सिचुएशन, ये बोलते हैं कि जो स्टेट ज़्यादा इस तरह से बिहेव कर रही है, जिदे मतलब कहते हैं ना भी कोई हाल नहीं है, ठीक है, उस स्टेट को आप इंसेंटिवाइज ना करो, और जो स्टेट अच्छे से बिहेव कर रही है उसको इंसेंटिवाइज करो। तो अब मैंने चलो टॉपिक शुरू कर ही दिया, मैं आपको बता ही देता हूँ इन्होंने क्या किया। कहते हैं कि वो स्टेट देखो जो सबसे बढ़िया तरीके से काम कर रही है, ज़्यादा ढंग से इंसानों की तरह चलती है, वेल बिहेव्ड स्टेट है, ना बहुत बड़ी है यूपी की तरह, ना बहुत छोटी है गोवा की तरह, एक रीजनेबल स्टेट ले लो स्टेट। फिर आप ये चेक करो कि जो भी स्टेट को आप पैसे दे रहे हो, उस स्टेट की हरकतें इस स्टेट से कितनी दूर है। जो स्टेट इस स्टेट से बहुत परे है उसको उतने कम पैसे दो, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में। तो फिर उन्होंने, आई थिंक हरियाणा टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट स्टेट इन दिस सेंस, आई एम नॉट टू श्योर, मोस्ट लाइकली इट वाज हरियाणा, ठीक। तो हरियाणा टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट स्टेट कि जो यूपी जिन्नी वड्डी भी नहीं हैगी, गोवा जिन्नी छोटी भी नहीं हैगी, तो फिस्कल डिसिप्लिन चंगा है इन्हां दा, ठीक। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हाउ क्लोजर यू आर टू हरियाणा इन योर हरकतां, ठीक, you will get more amount of money. So that kind of devolution is known as horizontal devolution. ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ फर्दर स्टेट्स किमें डिवाइड करने ਆਪਾਂ, ठीक। चलो कल की आपकी क्लास थोड़ी लाइट होगी, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कर ही लिया ऑलमोस्ट। नाउ यही फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक और काम करती है, ये भी रिकमेंडेशन देती है कि कैसे पैसे बढ़ाए जाएं स्टेट्स के पास ताकि वो पंचायत को दे सकें। ये मैंने इतना बड़ा प्रवचन फाइनेंस कमीशन का यहाँ पे इसलिए दिया है, आपको पता तो है क्या फाइनेंस कमीशन, ये एक बॉडी जो पंचायत के कॉन्टेक्स्ट में, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ बच्चे, इंडिया जो है सेंटर वाली, वो देती है रिकमेंडेशंस कि किस तरह से स्टेट्स के सोर्स ऑफ इनकम को ऑप्टिमाइज किया जाए सो दैट फर्दर डेवोल्यूशन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कैन बी डन। नंबर 1। नंबर 2, जिमें सेंटर च हुंदी है फाइनेंस कमीशन, उवें हर स्टेट च भी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हुंदी है, आई बैग योर पार्डन, फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट हुंदी है। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾ ਲਓ ਹੀ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ 100 रुपये। ਹੁਣ ਫਰਦਰ पंचायतों मान लो थोड़े को 22 डिस्ट्रिक्ट्स दी 22 डिस्ट्रिक्ट पंचायत से, इनको 22 पंचायत को कैसे पैसे देने हैं वो फाइनेंस कमीशन ऑफ पंजाब विल डिसाइड। रिपोर्ट गवर्नर ही इनको लगाता है, क्या क्राइटेरिया लगने का, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन बनूगा फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये सारा कुछ डिसाइड करूगी स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर अपॉइंट कर दूगा। उस तो बाद इन्होंने आपकी रिपोर्ट दे देनी है गवर्नर नूं, गवर्नर ने रख देनी है विधान सभा च, विधान सभा ने साल 1.5 साल च उन्होंने फिर डस्टबिन च सुट देना है।
Yes, unfortunately, I'm not saying that's true for Punjab. It may not be, but one of the problems of पंचायती राज institutions is इतनी सारी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स हैं जो बस पढ़ी हैं, पार्लियामेंट में उन पर स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कशन ही नहीं हुई। ठीक, वो आपको मैं मेंस में कराऊंगा, प्रॉब्लम्स विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। बट एनीवेज, सेकंड आपको समझ आ गया कि क्या कर रही है ये फाइनेंस कमीशन, ये स्टेट की है, वो भी बताती है। इस हिसाब से फिर स्टेट लेजिस्लेचर पैसे देता है डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक, पंचायतों को नीचे लेवल पे। चलो, उस तो बाद ग्रांट इन एड, वही मतलब इसी को थोड़ा सा बस फिरंग भाषा में लिख दिया कि ग्रांट इन एड टू पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, एक ही में जाएगा, हाउ मच मनी, ये सब बताएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। नाउ एट द सेम टाइम, ये बस मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया, वही कि गवर्नर यहाँ पे रिपोर्ट लिखेगा, एंड इवन सेंट्रल फाइनेंस कमीशन शैल ऑल्सो सजेस्ट दी मेजर। ये पीपीटी के साथ में पढ़ाने का बड़ा मुद्दा है, अदरवाइज बंदा अपने हिसाब से वही चीज़ पढ़ा देता है आराम से। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन शैल सजेस्ट दी मेजर्स टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। जिदा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ऑलराइट, दूजी गल, हुण ये तो हो गया अपना पंचायती राज दी पावर्स ते उन्हां दे फंक्शनस क्लीयर हो गए थानू। पंचायतां किवें सिलैक्ट हुंदियां ने, स्टेट इलैक्शन कमीशन चुनाव करांदा है। उस तो बाद अगे असीं आ गए पावर्स इन्हां कोल की ने, और जिहड़ी आइटम्स 11th शेड्यूल च दईयां होईयां ने उहदे उत्ते स्टेट लेजिस्लेचर इन्हां नूं कहूगा बना लो भी लो। पैसे भी थानू पता लग गए। यूटी दा की करिए, जे राष्ट्रपति साहब अगर वो डायरेक्ट करे, इफ प्रेसिडेंट डायरेक्ट करे, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी यूटी में भी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि यूटीज एसेंशियली डू नॉट शेयर फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल पावर शेयरिंग विद द सेंटर, तो इस तरह से वो वहाँ पे भी यूज हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये क्या है कि कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे हमने बोला है कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अप्लाई नहीं होता ये वाला। वो कौन से एरिया हैं जिनके ग्रास रूट लेवल पे डिस्टिंक्शन, यूनिकनेस मेंटेन करनी थी। जे.एंड.के में आप अगर प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तो हो सकेगा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया ऑफ मणिपुर एंड दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है। तो ये एरियाज़ में कुछ एग्जेम्पशन है। ये आपको मेरे को लगता नहीं पंजाब पीसीएस में आएगा, बट फिर भी चलो आपको पता हो कि कुछ एरिया पे एग्जेम्पशन है। बट अब क्या है, दोबारा ध्यान से सुनो, सारे इंडिया च तां तुसीं करती हुई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता, बट कुछ इंडिया का एक तो नॉर्मल पिंड ने, जिमें हुण पंजाब का पिंड है जिथे वो पिंड कह नहीं सकते तुसीं 4 ऑडियां घूम रही होंदियां ने, 10 9 11, ठीक है, इदां दी चीज़ां घूम रही होंदियां ने। कोई बोल रहा था, कहते हैं कि यार पंजाब में फार्म बिल के अगेंस्ट जो अभी ये चल रहा है, कहते हैं कि पता लगता है पंजाब में चल रहा है। कहते क्यों? कहते किसी ने इतने महंगे ट्रैक्टर को आग लगा दी, किसी ने इतनी महंगी गाड़ी को आग लगा दी। नॉर्मली अगर विदर्भ में किसान इकट्ठा हो रहा होता है तो पता लगता है उदा ही इकट्ठा हो गया बेचारा, ठीक, उदा ही मरे पे ने उधर देख किसान। अपने उरे पंजाब को ऐसे फेम माना जाता है ना कि बड़ी एक्स्ट्रावेगेंट सी स्टेट है। तो एनीवेज, आपने सारी स्टेट्स में तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ले आए, बट ट्राइबल एरिया का क्या किया जाए? वहाँ पे तो उनका लोकल कल्चर है। शेड्यूल्ड एरिया का, प्राइमरली स्पीकिंग, शेड्यूल्ड एरिया का क्या किया जाए? उनका अपना लोकल कल्चर है। यहाँ के लिए एक चीज़ की गई, कभी भी आपको पेपर में सवाल आए, 2 चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। पहला, ग्राम सभा, और दूसरा कस्टम्स एंड कल्चर। मैं तुहानू की कह रहे हैं भी जदों भी क्वेश्चन आया थानू, चलो इससे एक चीज स्टेप पहले पीछे चलते हैं कि सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोल दिया कि यार देखो भी नॉर्मल इंडिया में तो सब में पंचायती राज ऑफ इंस्टीट्यूशन चलेगा, जो शेड्यूल्ड एरिया है अगर वहाँ पे इसको अप्लाई करना है विद सम मॉडिफिकेशन एंड सो ऑन, तो पार्लियामेंट एक्ट बना के कर सकता है। पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया जिसका नाम है प्रोविजन ऑफ पंचायत, यही पंचायत के प्रोविजन
एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟ 1996 ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ PISA, PESA, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। अब ये जो है ना एक्ट, इसकी अब बात समझना, यहाँ पे दो चीज़ें काम आएंगी। जब भी आपको पीसा पे क्वेश्चन आ गया, आपको अगर उसका आंसर आता है फिर तो बात ही ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो पंजाब PCS में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज, स्टेटमेंट की लैंग्वेज ग्राम सभा को पावर दे रही है, स्टेटमेंट टिक कर देना। अगर वो पावर ग्राम सभा से लेके मान लो किसी DC को दे रही है, किसी कमिश्नर को दे रही है, स्टेट लेजिस्लेचर को दे रही है, किसी हायर अथॉरिटी को दे रही है, स्टेटमेंट रॉन्ग कर देना। अगर ग्राम सभा को ऑडिटिंग पावर मिल रही है, ग्राम सभा को लॉ मेकिंग पावर मिल रही है, ग्राम सभा को एम्पावर किया जा रहा है, ग्राम सभा आपको याद है, इट इज़ नॉट अ पंचायत, इट इज़ सारे लोग इकट्ठे हो गए, दैट इज़ ग्राम सभा। दूसरी चीज़, अगर तो स्टेटमेंट की लैंग्वेज आपको ये आ रही है कि कल्चर और लोकल कस्टम्स इससे प्रिजर्व किए जाएंगे, लोकल कल्चर या लोकल कस्टम उस शेड्यूल्ड एरिया का प्रिजर्व प्रोटेक्ट किया जाएगा, स्टेटमेंट ओके होगी। अगर आपको लगेगा कि फोर्सफुल मेन स्ट्रीमिंग की जा रही है एरिया की, उनको ज़बरदस्ती आप गोरा बनाने पे लगे हो, जैसे हम सारे बन गए, ना इधर के ही रहे ना उधर के ही रहे, अगर शेड्यूल्ड एरियाज में भी आप यही करने की कोशिश कर रहे हो तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग कर देना। ये इस तरह करने से आपके चांसेस हैं कि आपका जो कैलकुलेटिव गैस होगा वो ठीक होगा। तो आप पंचायत तो ले आए रूरल एरिया के लिए, बट रूरल एरिया में भी एक स्पेशल एरिया एग्जिस्ट करते हैं जो शेड्यूल्ड एरिया है, जिसको हमने शेड्यूल में लिख रखा है, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल। वहाँ पे अगर आपने पंचायत एक्सटेंशन करनी है तो स्पेशल लॉ बना सकता है पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा था, पार्लियामेंट ने बना दिया, इस एक्ट का नाम है PISA। इस एक्ट के अंडर आप देख लो होएगी सिंपल सी चीज़ यही कि आपने क्या करना है, एक तो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के उधर अप्लाई करने हैं, दूसरा एक ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट करना है, इसका ऑब्जेक्टिव एक्ट का, कि जो लोकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के साथ में मेल खाता हो, उनके ट्राइबल कस्टम्स प्रिजर्व करता हो। ठीक, फीचर्स एक्ट के सारे आपको वही मिलेंगे कि ऐसी लेजिस्लेशन लेके आनी विच इज़ इन कॉन्सोनेंस विद, विच इज़ इन कंसिस्टेंसी विद कस्टमरी लॉज, उन्होंने दे अपने रीति रिवाज, सोशल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। वैसे पता की चक्कर है, हम इन्नी बड़ी कंट्री है, थोड़ी बहुत वो हो ही जाती है, गलती वगैरह हो ही जाती है, पर अदरवाइज़ हमारी कंट्री इन जनरल मोटा मोटा ट्राई करती है भी ना ਜਿਹੜੇ लोकल कस्टम्स ने, ट्रेडिशन ने, रिलीजियस सेंटीमेंट्स ने, उन्हों की केयर की जाए। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੈਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਸਟਮਸ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ, वो उनको ख्याल में रख के चलाया जाएगा। आप में से ना बड़े बच्चे वो बनेंगे, क्या कहते हैं उसको, जो पेपर निकलेगा अभी पंजाब का ही, DSP। आई वुड रियली होप कि यू विल चेंज द फेस ऑफ पंजाब पुलिस। ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग करेंगे आप। पंजाब पुलिस ने ना बिकॉज ऑफ 80s एंड 90s बड़ा ना इदा तशद्दद जी ढा के बहुत सारे मुंडिया ते उस टाइम ना बड़ी एक नैगेटिव जी इमेज क्रिएट करवा ली है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स मैं पर्सनली जानता जो वेरी नाइस, वेरी नाइस पीपल, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऑपोजिट वाले भी साइड वाले भी हुए ने, दे वर नॉट ऑल दैट नाइस। उस करके ना एक बड़ी डिफरेंट जी इमेज बन गई। बट आई होप कि यू विल बी ए रियली सिटीजन सेंट्रिक, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन दी एक वैल्यू इंसान दी, उन्होंने ध्यान च रख के तुसीं पुलिसिंग करोगे। दैट्स वट वी यूज टू टीच टू लाइक जो उन्होंने पहला पढ़ाया सी, किसी नूं तक शायद चमक जे ये गल। ठीक है, आपां ने अपने भरा ही ने यार सारे ਜਿਹੜੇ इंडिया च रहिंदे ते बाहर भी रहिंदे, थोड़ा जा ना वी नीड टू डेवलप दिस हैबिट कि यार डिसकंटेंट थोड़ा कम हो और थोड़ा सा प्यार से रहें एक दूसरे के साथ में। हो क्या जाता है कि आप स्टेट वर्सेस सिटीजन है हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा, कि एक हुंदी है सरकार, एक हुंदी है सिटीजन, तो दोवां दे विच ना बैर जा चलता है।
दैट यूज टू बी द केस विद ब्रिटिश चल गए, ट्रांजिशन होया नहीं, हले भी ना सिस्टर स्टेट उदा ही चलती है, स्टेट वर्सिस सिटीजन, होना की चाहिए स्टेट फॉर सिटीजन एंड सिटीजन फॉर स्टेट, ठीक। सो आई होप सम ऑफ यू हु आर लाइक यंग जनरेशन ਉਹ इदा ਦਾ कुछ करेगी। ओके चलो कमिंग बैक टू दिस थिंग, फीचर्स ऑफ एक्ट की है यही सारे, कस्टमरी लॉ, सोशल प्रैक्टिस सारा का ख्याल रखा जाऊगा, उन्होंने कुछ थोपा नहीं जाएगा शेड्यूल्ड एरिया पे। बेसिक से चीज़ ये है, अप्रूव दी प्लान प्रोग्राम, कोई भी चीज़ अप्रूव करानी है, कोई प्रोजेक्ट अप्रूव कराना है, कोई प्लान अप्रूव कराना है, उत्थे किस तो पूछा जाएगा, ग्राम सभा। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस थिंग कि ग्राम सभा को पावर दी जा रही है पीसा में और कस्टमरी ट्रेडिशंस को। अगर कोई सरकार ने स्कीम लेके आए, अब चेक करना है कि ठीक से स्कीम चली भी कि नहीं, जायज़ काम किया भी कि नहीं, राइट बेनिफिशरीज को फ़ायदा हुआ कि नहीं, इसकी ऑडिटिंग भी कौन करेगा, ग्राम सभा। विलेज लेवल की ग्राम सभा जो है वो देगी सर्टिफिकेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, नॉट सम अदर सरकारी ऑफिसर, बिकॉज वो तो घोस्ट बेनिफिशरीज क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे ग्राम सभा के पास पावर है। तो प्राइमरीली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पंचायतां जड़ियां बन गया शेड्यूल्ड एरिया च, उत्थे मैक्सिमम पावर है ग्राम सभा कोल, ते जिहड़ी पंचायतां भी बनन गियां उत्थे शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी रह सकती हैं, हो सकता है कोई शेड्यूल्ड ट्राइबल शेड्यूल्ड एरिया पर ट्राइब्स नहीं भी रह रही, दूजे लोग भी रह रहे हैं, ट्राइब्स भी रह रही ने, तो उत्थे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन भी कंपलसरी हैगी है, घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए है इधरले पासे पीसा च, ठीक है क्लियर। नाउ ये सारा कुछ मैं तुहानूं दसता, नॉट अ बिग। हाँ एक पॉइंट तुसीं लास्ट सुन लो फिर भी जस्ट इन केस, जे कदे किसी शेड्यूल्ड एरिया दे विच माइनिंग दा लाइसेंस देना है किसी नूं, तो वह भी ग्राम सभा तो पुछ के दिया जाऊगा। माइनिंग लाइसेंस फॉर माइनर मिनरल्स शैल बी इन द शेड्यूल्ड एरिया, वो ग्राम सभा ते पंचायत तो पुछ के ही थानू वो तुसी आगे फर्दर सरकार दे सकती है। इन अदर वर्ड्स अगेन कैन यू सी, वही जो मैंने आपको इमेज बिगिनिंग में बोला था कि द पावर एसेंशियली लाइज विद द ग्राम सभा। ओके नाउ दैट प्रीटी मच वाइंड्स अप आर पंचायती सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया। एक चीज़ आपको याद रखनी है, मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि सिर्फ और सिर्फ पंचायत में चुनाव कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। एमएलएस दे चुनाव जो स्टेट विधानसभा के होंगे वो भी कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ पंचायत के चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बॉडी एग्जिस्ट करती है। हुण ये तो हो गया अपने को पंचायतां। शहरों में क्या होता है, शहरों च हुंदी है म्यूनिसिपैलिटीज़। वेरी स्मॉल टॉपिक, छोटा जो टॉपिक है, इनू छेती आप कर लेंगे हैं सो दैट टुमारो वी कैन स्टार्ट विद सेंटर स्टेट रिलेशन। हमारी कंट्री का ना एक दुर्भाग्य है, वो क्या है, गांधी, नेहरू, सुभाष जी, अपना भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर एंड देन जिन्ने भी तुसी देख लो, तो पुराने टाइम तो तुसी ला लो ये दादा भाई नेहरू जी तो। लुक एट दीज पीपल, none of them would say कि पिंडा दे काके ना फिकर ना फाके। Who are these people? शहरी पीपल, पढ़े लिखे हुए, लॉयर्स है ना, सारे अर्बन। All are freedom fighters, most of them are urban and but obvious है, जड़ा बंदा शहरी बंदा उन्हें लगूगा यार ये गोरा कोल पावर है, मैं भी तो गोरा जाई है, ठीक है, जो मैं थोड़ा जा इफेक्ट ला लेंदा अपने उत्ते गोरा ही लगता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ऑल ऑफ देम आर अर्बन। फिर जे तुसी अपनी हिस्ट्री देखो, द प्लेस वेयर वी लिव टुडे, मॉडर्न डे पंजाब तो ऑल द वे, जदों बाकी सिविलाइजेशंस नूं ये नहीं पता सी भी यार रोटी पका के भी खाई दी है ते कच्चा मीट खांदे सी, ऑलमोस्ट सो मैनी सिविलाइजेशंस, वाइकिंग्स, उदों तो असी स्क्वेयर रोड्स बनातियां सी हड़प्पा च, 16 के बेस की करेंसी बना दी थी, ठीक है ना। आपको पता है हड़प्पा में कितनी ज़बरदस्त टाउन प्लानिंग के साथ में, तुसी चल जाओ हले भी चंडीगढ़ तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाहर चल जाओ, अंबाला चल जाओ, भावें पटियाला चल जाओ, अज भी थानू ओपन वो मिल जूगी, घरां दे मूहरे ओपन ड्रेनेज सिस्टम बनया हुआ है, ठीक, अज भी 2020। ऑन दी अदर हैंड इन्होंने 2500 साल पहला 3500 साल पहला
ਗਟਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਕਵਰਡ ਨੇ ਯਾਰ, ਥੱਲਿਓਂ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਊਗਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ डस्टबिन ਚੱਕੇ जाएंगे एंड देन सो ऑन। तो इतनी आपकी अर्बनाइजेशन की हिस्ट्री थी। अब आपके फ्रीडम फाइटर्स भी अर्बन थे, मान लिया भाई गोरे आ गए, उन्होंने 200 साल बड़ा अंधकार मचा दिया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूँ ना, इनको कम से कम इतनी इज्जत तो दी कि चलो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला, डीपीएसपी 40वें में ये तो लिख दिया, म्यूनसिपैलिटीज़ की तो वहाँ भी बात नहीं की गई। हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा ग्रामीणीकरण हुआ, बहुत ज़्यादा ना पेंडूकरण हो गया इंडिया का हौली हौली ना। इन्ना एक अर्बन कंट्री होंदी सी, बड़े देहातीकरण हो गया इंडिया का हौली हौली। बट ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਠੀਕ, ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਊਂਗਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਸੈਕਟਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ 5 ਸੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਨਏ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ IPS ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਵੀ IRS ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1989 ਬੈਚ ਦੇ IRS ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਮਦਰ। 1989 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅਕੈਡਮੀ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 500 ਨਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੀ ਨੀਡ 500 ਮੋਰ ਸਿਟੀਜ਼। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਰੋਡ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅਨਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੁਆਟਰਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਭਰਤ ਸਰ हैज़ डिस्कस्ड दोज विद यू इन अर्बनाइजेशन। इफ ही हैजंट ही विल फॉर द मेंस क्लासेस। एनीवेज, अब आपको चाहिए साहब स्मार्ट सिटीज़। स्मार्ट सिटीज़ बन ही नहीं सकती विदाउट स्मार्ट म्यूनसिपैलिटीज़, पॉसिबल ही नहीं हैगा। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको स्मार्ट म्यूनसिपैलिटीज़ चाहिए। अब ये कैसे बनेगी स्मार्ट म्यूनसिपैलिटीज़? जब लोग शहरों के राइट कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे, वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं शहर को, राइट कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे, अब उसके पास में फाइनेंसेस होंगे, पावर होएगी। हमारे अर्बन एरियाज़ के साथ में एक प्रॉब्लम आती है, सुनना ये ध्यान से, ये अगेन फिर आप बोलोगे कि ये IAS लेवल तक कराने लग जाते हैं वो करके, ठीक है। तो ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਓਨਲੀ ਕਿਡਿੰਗ, ਠੀਕ। ਨਾਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 2017 ਆਈ ਥਿੰਕ it talked about something very genuine, which was कि यार इंडियन म्यूनसिपैलिटीज़ ने ना जड़ियाँ, they are under a low equilibrium trap। what is that? ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਡੂ ਨਾਟ ਗਿਵ them ਮਨੀ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਗੈਟ दैट ਮਨੀ, ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਪੇ them ਐਨੀ ਮਨੀ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, क्योंकि मैंने फैसिलिटी नहीं देंगे, इस करके लोग पैसे नहीं देंगे, इस करके फिर फैसिलिटी नहीं देंगे, इस करके लोग पैसे नहीं देंगे, इस करके ये फैसिलिटी नहीं देंगे, इस करके लोग पैसे नहीं देंगे, इस करके फैसिलिटी नहीं देंगे। एंड देन दिस विशियस साइकिल इज क्रिएटेड। ये दुष्ट चक्र बन गया है एक, जहाँ पे आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ के पास पैसे ही नहीं है। थोड़ी बहुत म्यूनसिपैलिटीज़ आजकल जो चंडीगढ़ जैसे शहर हैं या लुधियाना लगा लो, आई थिंक आई एम होपिंग, ठीक है, प्रॉबेबली नॉट, पर दिल्ली लगा लो, कि वहाँ पे पार्किंग से पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। आई एम प्रीटी श्योर बाकी शहरों में भी कर रहे होंगे, नॉर्मल मार्केट से पार्किंग से पैसे इकट्ठे कर लिए एंड ऑल दैट। बट अदरवाइज हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ दे रन फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ मनी इन एडिशन टू सो मैनी अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। प्रॉपर्टी टैक्स भी जोड़ा है वो भी मतलब उस भी बहुत सारी कॉम्प्लीकेशंस ने। जे तो प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा लाता म्यूनसिपैलिटीज़ ने तो स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं लाण देना। हुण तुसीं सोचो ना, अमरिंदर सिंह जी बैठे ने पटियाला, तो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ म्यूनसिपैलिटी, अमृतसर ਦੀ म्यूनसिपैलिटी ने
ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ म्यूनसिपैलिटी ਵਧੀਆ नहीं हैगी, उन्होंने कहना आओ होर जिता दो महाराजे नू, ठीक है, करती महंगाई। ये इनको भी पता है, इन्होंने इसको लगाने नहीं देना। अगर ये कम टैक्स लगाए तो फिर पैसे नहीं कुछ इकट्ठे होने, फिर बदनामी भी क्यों काटनी, इस तो बढ़िया फिर आप लाइए ना टैक्स। एंड देन इस तरह से एक विशेष साइकिल क्रिएटेड हुआ है, सारा का सारा पैसे नहीं है म्यूनसिपैलिटीज़ के पास। हैविंग सेड दैट, इन दिस सिचुएशन अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में अभी स्ट्रक्चर क्या है म्यूनसिपैलिटीज़ का, कभी रिफॉर्म्स की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है एंड ऑल दैट, वो हम मेंस के लिए करेंगे। सबसे पहले कहते हैं जी अर्बन गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया 1992 में 74th अमेंडमेंट। हुंदा की है हिस्टोरिकली जे आपां गल करिए, हुण तुहाडी किताबां 'च जिहड़ी हिस्टरी लिखी हुई है वो मैं तुहानूं दस दिंदा, मेरे हिसाब नाल तां हिस्टरी अर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन तो आ रही है, आपां अर्बन ही सीगे शुरू तो, ठीक। इंडिया में ये जो ऑब्सेशन हुई है ना, दिस आपको अपनी रूट्स नहीं भूलनी। असी लाइक नेवर फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम बिकॉज अदर्स वोंट वेयर इट लाइक एन आर्मर। टेरियन लैनिस्टर ने क्या सीखा है गेम ऑफ थ्रोन्स, बट अदरवाइज आप अपनी ना, हमें अपनी रूट्स नहीं भूलनी, बट थोड़ा सा ना हमें मॉडर्नाइज होना है, अर्बनाइज होना है। आई एम नॉट सेइंग कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, पर हमारी ना एक अजीब सी फिटिश है विद पिछड़ापन, दैट वी नीड टू श्रेड ऑफ। एनीवेज, अब ये बोलती हैं किताबें कि जी 1688 में पहली बार एमसी बनी मद्रास में, उस तो बाद 1726 बॉम्बे ते कैलकटा च भी बन गया। लॉर्ड रिपन ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤ ਸਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸੈਲਫ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲॉर्ड ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲॉर्ड ਮੈਯੋ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ म्यूनसिपैलिटी ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 74th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ म्यूनसिपैलिटीज़ ਬਣਾਈਆਂ, 3 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ? ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ट्रांजिशनल इन नेचर है, विच इज़ रूरल एरिया, तो ਹੁਣ ਉਹ ट्रांजिशन कर रहा है अर्बन एरिया 'ਚ, ठीक। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣੂਗੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬਨੂੜ, यू कैन से दैट लाइक आई थिंक कि वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ट्रांजिशन किया है, आई कुड बी रॉन्ग हियर। अम्बाड़ा जाते हो आंदा लाल लड़ू, ठीक है, रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। देन म्यूनसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज, कोई छोटे एरियाज ने बट अर्बन एरियाज ने, उत्थे ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ म्यूनसिपल काउंसिल। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरिया। साइज मैटर्स हेयर, जे छोटा एरिया तो म्यूनसिपल काउंसिल, जे बड़ा एरिया तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो जे ट्रांजिशन च हले तो नगर पंचायत। ऑल राइट, यूजली की होंदा है, तुसी कोई भी एरिया मान लो लुधियाना, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਵਾਰਡਸ 'ਚ। ਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਚਹੇਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, हर एक वार्ड से तुसी उन्होंने डिवाइड करके इलैक्शनस कराते। जिहड़ा वार्ड का बंदा इलैक्शन जित गया वो बन गया काउंसलर उत्थे दा। सिमिलरली दूजे वार्ड का तीजे चौथे पंजवें छेवें इदा करके 12 वार्ड्स का बन गया। हुण जिहड़ी पार्टी के ज़्यादा बंदे आ गए, मान लो 7 आ गए, उन्होंने हुण अपने इत्थे मुखिया चुन लेना है, काउंसल्स उन्हां कोल ने, उन्हां दा ही बंदा हुण मेन, अगर मान लो मेट्रोपॉलिटन है तो मेयर बन जाएगा। यहाँ पे आई थिंक उसके लिए चेयरमैन वर्ड होता है, चेयरमैन बन जाऊगा। और जोड़े होंगे ने, जोड़े जगराते इतने बिल्ला ला के जोत जगाते होंगे ने, ठीक है, और दैट पर्सन, वो अंकल चेयरमैन होते हैं। नाउ कॉम्पोजिशन, ठीक है कि है सारे मैंबर जिवें तुसीं वेख्या होने वार्ड च डिवाइड करके डायरैक्टली इलैक्ट किए जाएंगे, ठीक। हाँ, चेयरपर्सन किवें इलैक्ट होएगा, वो स्टेट लैजिस्लेचर डिसाइड करेगा। मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, चुनाव होंगे म्यूनसिपैलिटीज़ के, फिर उसके बाद में उनका मुखिया कैसे इलेक्ट होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। हुण कुछ चीज़ां थोड़ी जी कुछ प्रोविजनस वेख लो। पहली चीज़, जे किसी परसन नूं कुछ स्पैशल नॉलेज है विद रिस्पैक्ट टू म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਮਬਡੀ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੌਲੇਜ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ MLAs ਨੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ MP ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ, द पर्सन कैन बी द राज्यसभा member from any place because राज्यसभा का member तो स्टेट से जाता है। So even this person shall be entitled to have a representation here. Okay? बस की one thing in mind कि जो बंदा स्पेशल नॉलेज वाला है उसके पास वोटिंग राइट नहीं है, बाकियों के पास वोटिंग राइट होता है। और चेयरमैन ऑफ इसका कमेटी का कैसे बनता है वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। नाउ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इत्थे भी रिजर्वेशन है जिवें असीं पहलां कीता सी पंचायतां च, एग्जैक्टली सेम कि देयर शैल बी रिजर्वेशन फॉर SC ST इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। हाउएवर जिवें असीं वुमेन दे केस च कीता सी, सेम थिंग इज ट्रू हेयर कि घट्टो घट्ट 1/3 रिजर्वेशन होनी चाहिए है वुमेन दे लई इत्थे पंचायतां च। एंड वन मोर थिंग कि जिहड़े चेयरमैन वाली ओ है, चेयरमैन वाली पोस्ट है, उत्थे भी रिजर्वेशन होगी जिवें अगेन पंचायत है, एग्जैक्टली सेम एज पंचायत। जो एक दो चीज़ डिफरेंट है ना वो मैं आपको भी करा दूंगा। मैक्सिमम म्यूनसिपैलिटीज पंचायत के साथ में ही बिल्कुल मेल खाती हैं। जैसे पंचायतें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, वैसे ही ये भी 5 साल के लिए चुनी जाती हैं म्यूनसिपैलिटीज। बट एक डिफरेंस है, पंचायतों को अगर डिसॉल्व करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर सरकार डिसॉल्व कर देगी, पंचायतें देख दिया रहेगी भाई ये की हो गया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने म्यूनसिपैलिटीज़ को डिसॉल्व करना है, अगर आपने उसकी टर्म होने से पहले डिसॉल्व करना है, तो म्यूनसिपैलिटीज़ को आप एक चांस दे दोगे कि भाई थानू डिसॉल्व करने लगे थोड़ी टर्म तो पहला, डू यू हैव एनी क्लैरिफिकेशन दैट यू वांट टू गिव। तो म्यूनसिपैलिटीज़ एटलीस्ट कैन से टू द स्टेट लेजिस्लेचर कि बेबी गिव मी जस्ट वन चांस। यहाँ पे पंचायतों को बेचारा को ये भी नहीं हैगा। दिस पावर इज विद रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो है ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर द रेजोल्यूशन लाइज ओनली विद द म्यूनसिपैलिटीज एंड नॉट विद पंचायत। ओके, और उसके बाद में वो बाकी सेम है कि जो फ्रेश इलेक्शन होंगे वो वैसे ही जैसे पंचायतों के होते हैं वो वैसे ही दोबारा करे जाएंगे 6 महीने के अंदर अंदर फॉर द रिमेनिंग पीरियड, एग्जैक्टली एज पंचायत। देन डिसक्वालीफिकेशन जो किसी बंदे की करनी है, इन अदर वर्ड्स क्राइटेरिया की है म्यूनसिपैलिटी के इलैक्शन लड़न का, पंचायत वाला 21 साल, ਇਹਦਾ भी स्टेट इलैक्शन कमीशन चुनाव कराऊगा, ਇਹਦੇ ਕੋਲ भी वही पावर्स ਤੇ फंक्शंस ने। ठीक, सो दैट इज़ प्रीटी मच एवरीथिंग। नाउ अब आपकी कुछ चीज़ें इसमें पेंडिंग है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, म्यूनसिपैलिटी प्लानिंग कमेटी, ऑल दोज थिंग्स दैट वी शैल डू टुमारो। पहला 15 मिनट ला के वो करके फिर ਅਸੀਂ स्टार्ट करेंगे का सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। चलो हुण बस छेती छेती भोग पा देना सी पॉलिटी का। ओके, आई विल सी यू सून, अंटिल देन यू टेक केयर, गुड नाइट।